Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have started reading with our chapter number 9 from the book First Flight, and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. Okay, so we were reading a story about an 8-year-old girl. The name of the girl is Valli and she is planning to have her first bus journey. Okay, and she is already with her plan. So what will happen next, we will come to know when we will continue the chapter. So let's begin. Part 2nd of the chapter. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" Okay, so we have read in the previous video that Valli was planning for 1 o'clock bus. Okay, उसकी क्या planning थी कि वो जो afternoon में 1 o'clock की bus है, she will take that bus. So it was one fine spring day. Okay, और जो afternoon की bus थी, that was 1 o'clock bus, that was ready, okay, on the point of leaving the village and turning into the main highway. Then suddenly one small voice was heard and that voice was shouting like, "Stop the bus, stop the bus." Okay, and a tiny hand was raised commandingly. Okay, so जैसे ही वो बस हाईवे पे टर्न होने वाली थी तभी एक आवाज़ आती है, "Stop the bus, stop the bus." It was very tiny voice. और जैसे ही सब देखते हैं that who is shouting, तब उन सबको क्या दिखाई देता है, एक टाइनी सा हैंड दिखाई देता है that was raised commandingly. Okay, the bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." Okay, so उसकी आवाज़ सुन के जो बस है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, वो रुकने वाली थी और वो स्लो होते होते एक तरह से क्रॉल करने लगती है. एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, वो क्या करता है, स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर. स्टिकिंग मीन्स पुश. ओके, सो ही पुश्ड हिज हेड आउट ऑफ द डोर एंड ही सेड, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." ओके, कंडक्टर कहता है कि ओके, बस रुक चुकी है, नाउ टेल whoever it is. ओके, सो उसने कहा कि इस बस में ट्रैवल करने के लिए कौन आने वाला है, सो जो भी है उसको कहो क्या करे कि वो जल्दी करे क्योंकि बस नहीं तो चली जाएगी. सो तुमने बस जिसके लिए रोकी है, जो एक्चुअल में पैसेंजर इस बस में आने वाला है, उसको तुम कहो टू हरी अप. ओके, "It's me," shouted Valli. तो ये सुनते ही जो वली थी वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है and she shouted like, "It's me. I am the one who has to got on." वो कहती है, "It's me. I am the passenger. I am the one who has to travel in your bus. I am the passenger in your bus." Okay. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." Okay, so अब तक जो बस थी अब वो क्रॉल करती करती है वो पूरी तरह से रुक चुकी थी और वली जो है वो बस के गेट तक आ जाती है. एंड द कंडक्टर सेड, "Oh really?" सो कंडक्टर जो है ही वॉज ऑल्सो अनेबल टू बिलीव कि वली जो है वो अकेली ट्रैवल करने वाली है बिकॉज शी इज़ एन 8-year-old गर्ल. सो कंडक्टर को थोड़ा अजीब लग रहा है कि वली अकेली कैसे बस में ट्रैवल कर रही है. सो ही इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सरप्राइज है. वो कहता है कि "Oh really? You don't say so." उसने कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम अकेली इस तरह से ट्रैवल कर रही हो. "Yes, I simply have to go to town," said Valli, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. Okay, अब जो वल्ली है she is so confident, वो अच्छे से अपनी एक एक चीज़ बिल्कुल रेडी करके आई है. So she is very confident and she said that, "Yes, I simply have to go to town." उसने कहा, "Yes, I am the passenger who will travel in your bus and I have to go to the town." Okay, and she is still standing outside the bus. Okay, still she is outside the bus and she also showed him the coins. Okay, the 30 पैसा जो फेयर है बस का उसने वो भी दिखाया. and she said that, "Here is my money." उसको लगा कि कंडक्टर को शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे ट्रैवल करूँगी. सो उसने क्या किया, she showed the conductor some coins and she said that, "Here is my money, here is my bus fare." Okay. Okay, but first you must get on the bus," said the conductor and he stretched out a hand to help her up. Okay, so वली जो है she is still outside the bus, she is standing outside the bus. So जो conductor है उसने क्या कहा, he is saying that okay, but first you must get on the bus. उसने कहा कि okay, you are having the money, you are having the 30 पैसे, that's okay, but if you want to travel in the bus then first you have to get in. Okay, after saying this he stretched
स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, ओके, वो उसको हेल्प करने के लिए, ओके, क्या करता है, ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड, ताकि वल्ली उसके सपोर्ट से बस में ऊपर इजीली चढ़ जाए, ओके। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, ओके। बट जो वल्ली है, शी इज़ नॉट वॉन्टिंग टू गेट एनी हेल्प, उसे किसी तरह की हेल्प नहीं चाहिए। सो शी सेड दैट नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, ओके। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। अब जो कंडक्टर है वो भी कैसा है, जॉली मीन्स ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी जॉयफुल काइंड ऑफ पर्सन एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओके। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही सैड, ओके। सो वो क्या कहता है, वो वल्ली से कहता है, ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, उसने कहा, ओ मैडम प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, और वो वल्ली को एड्रेस करता है कैसे, मैडम करके, ओके। सो दिस इज़ द रीज़न, जो हमारे चैप्टर का टाइटल है वो क्या है, मैडम राइड्स द बस। सो हु इज़ द मैडम, जो वल्ली है उसको कंडक्टर ने एड्रेस किया है एज ए मैडम, ओके। सो वल्ली इज़ द मैडम, राइट। He said, here have a seat right up there in front, okay. So अब वो वल्ली को डायरेक्ट कर रहा है कि कहाँ उसको बैठना है. So he is saying that here have a seat right up there in front. Everybody move aside please, make way for madam. So जो कंडक्टर है वो काफ़ी जॉली नेचर का है, काफ़ी वो उसको जोक करना काफ़ी पसंद है. सो अभी भी वो बहुत ही फ़नी वे में क्या कह रहा है, वो कहता है everybody move aside please. वो कहता है everybody who is sitting in the bus please move aside, please make way for madam. Madam is coming, madam is entering into our bus, so please make way for our madam, okay. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus, okay. So this was the afternoon bus और ये जो time होता है afternoon का, it is very slack time of the day. What is slack? Slack means quiet, जहाँ पे ज़्यादा rush नहीं होता, okay. So morning में evening में जो बस जब जाती है so काफ़ी rush होता है, काफ़ी crowd होता है बस में, but जो afternoon का time है it is very quiet time, इसीलिए बस में ज़्यादा rush नहीं था. There were only 6 or 7 passengers on the bus. Okay, they were all looking at Valli and laughing with the conductor. Okay, so when conductor addressed Valli as a madam and he also said that please make way for our madam is entering into the bus. So after listening that, all the passengers were laughing with the conductor. Okay, so conductor was laughing and all the passengers were laughing with the conductor. Okay, Valli was overcome with shyness. जो Valli जब देखती है कि everyone was laughing with the conductor, so उसको थोड़ी सी shyness feel होती है. Okay, avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. Okay, so उसको थोड़ी सी shyness feel होती है and she wanted to avoid everyone's eyes. वो किसी की eyes में नहीं देखती है, सबकी eyes को वो avoid करती है और फिर वो जल्दी से जाके एक empty seat पे वो बैठ जाती है. Okay, so बस में जहाँ empty seat थी वहाँ जाके she took her seat. Okay, May we start now madam? The conductor asked smiling. So जो कंडक्टर है वो अभी भी जोक के मूड में है. So जब वल्ली जो है वो बैठ चुकी है, अच्छे से सेटल हो चुकी है, so after that conductor asked one more time that may we start now madam. One more time she addressed Valli as madam and he asked that may we start now. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. इसके बाद वो क्या करता है, he blew his whistle twice. Okay, so आप सबने देखा होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं बस के, दे ऑल हैव अ विसिल. उनको जो बस ड्राइवर को तो सिग्नल देना होता है कब बस को चलाना है, कब रोकना है. सो ये सारे सिग्नल वो अपनी विसिल से देते हैं, राइट. सो सेम विसिल ही वाज हैविंग एंड ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स 2 times एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रॉर, विथ अ नॉइज. ओके, It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Okay, so this was a new bus. ये कोई बहुत ऐसी पुरानी सी नहीं थी, काफ़ी न्यू थी ये बस. और इसका जो आउटसाइड पेंट था वो कैसा था, इट वॉज अ ग्लीमिंग वाइट. आउटसाइड से कैसी थी, ग्लीमिंग वाइट. वॉट इज ग्लीमिंग? ग्लीमिंग मीन्स रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम क्लीन एंड पॉलिश्ड सरफेस. ओके, सो आउटसाइड से वाइट कलर की थी और वाइट कलर में कैसा था, इट वॉज ग्लीमिंग
ग्लीमिंग वाइट, यानी वो वाइट कलर इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था, वो इतना ज़्यादा क्लीन था, वो न्यू बस थी, इसलिए जो वाइट कलर था वो बिल्कुल पॉलिश्ड लग रहा था, बिल्कुल क्लीन लग रहा था, इतना क्लीन कि वहाँ से लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही थी. ओके, विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स. ओके, सो बेस तो वाइट कलर का था एंड अपार्ट फ्रॉम द वाइट कलर इट वॉज हैविंग सम स्ट्राइप्स ऑफ ग्रीन कलर. कहाँ पर? अलोंग द साइड्स. ओके, तो जो बस की साइड्स थी वहाँ पे ग्रीन कलर की कुछ स्ट्राइप्स भी थी ऑन द वाइट बॉटम. ओके, inside the overhead bars shone like silver. Okay, अब बाहर से तो हमने पढ़ लिया that outside was painted white and over white color it was having some stripes of green color. Okay, and now inside जो interior था बस का वो कैसा था? So inside the overhead bars shone like silver. Okay, so inside the bus जो overhead bars थे, अब overhead bars क्या होते हैं? So आप सबने बस में ट्रैवल कभी ना कभी किया होगा, बस आपने देखी होगी अंदर से कैसी होती है. So ये जो overhead bars होते हैं ये आप सबने देखा ना, जो बस के अंदर जो पैसेंजर्स खड़े हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए ओवरहेड बार्स होते हैं. सो ये कैसे थे? ये भी इतने, क्योंकि न्यू बस थी, जो अंदर से ये बस न्यू है, इसलिए ये जो ओवरहेड बार्स हैं ये भी इतने क्लीन थे दैट दे वर शाइनिंग लाइक सिल्वर. ओके, सो ये स्टील के होते हैं बने हुए, सो ये भी इतने न्यू थे, इतने क्लीन थे दैट दे वर शाइनिंग एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. ओके, directly in front of Valli above the windshield there was a beautiful clock. Okay, so जो वल्ली है वो क्या कर रही है? She is examining very carefully each and everything inside the bus. Okay, वो फर्स्ट टाइम बस में बैठी है और अपने इस एक्सपीरियंस को वो बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती है, वो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखना चाहती है. राइट, सो वो बस के अंदर बैठी हुई एक एक चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है. ओके, सो अब उसने क्या देखा? डैट अबाउट द विंडशील्ड. विंडशील्ड क्या होता है? बस के ये जो फ्रंट मिरर्स होते हैं, राइट, सबने देखे हैं बस के आगे जो फ्रंट मिरर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड विंडशील्ड. सो इन विंडशील्ड के ऊपर देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. ओके, द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस. और जो बस की सीट थी दे वर ऑल्सो वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लग्जीरियस. व्हाट इज लग्जीरियस? लग्जीरियस मीन्स कंफर्टेबल. ओके, सो इस तरह से वल्ली ने बस को अंदर से पूरी तरह से एग्जामिन किया, बहुत क्लोजली उसने एक एक चीज़ को ऑब्जर्व किया. राइट, वल्ली डिवर्ट एवरीथिंग विथ हर आइज. तो इस तरह से वल्ली ने एक ही चीज़ को इतना क्लोजली देखा कि ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आइज की हेल्प से ही एक एक चीज़ को, डिवर्ट मीन्स रीड क्विकली एंड ईगरली, उसने एक एक चीज़ को बहुत क्विकली, बहुत ईगरली रीड कर लिया है, उसने एक एक चीज़ को बहुत क्लोजली एग्जामिन कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है. ओके, but when she started to look outside she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. Okay, so first she examines each and everything inside the bus. उसने बस के अंदर एक एक चीज़ देखी कि सीट कैसी है, सामने का इंटीरियर कैसा है, राइट, ओवरहेड बार्स कैसे है, अंदर क्या क्या है, सब जब उसने देख लिया, आफ्टर दैट शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड. अब उसने विंडो से बाहर देखना स्टार्ट किया क्योंकि बाहर का सीन कैसा है, बाहर क्या क्या दिख रहा है. सो व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ. तो उसने क्या देखा कि बाहर का जो सीन है उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, उसका जो व्यू है वो थोड़ा सा कट ऑफ हो रहा है. व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. ओके, सो ये जो बस की विंडो है इसका ये जो लोअर पार्ट है इट वाज कवर्ड विद अ कैनवस ब्लाइंड. व्हाट इज कैनवस ब्लाइंड? ये जो कर्टन्स होते हैं बस के विंडोज पे, आप सबने देखा होगा बस के विंडोज पे कर्टन्स लगे हुए होते हैं. सो सर ये कर्टन उस बस की विंडोज पे लगे हुए थे. सो बिकॉज ऑफ दोज कर्टन शी वाज अनेबल टू सी आउटसाइड. ओके, क्योंकि जो बस का लोअर पार्ट था वो 80-year-old गर्ल है, उसकी हाइट कम है, सो सीट पे बैठे बैठे उसे बाहर का व्यू नहीं दिखाई दे रहा था. शी वाज अनेबल टू लुक आउटसाइड बिकॉज ऑफ हर हाइट. ओके, so she stood up on the seat and peered over the blind. Okay, so she was unable to look outside. तो वो क्या करती है फाइनली? she stood up on her seat. अब उसको तो बाहर देखना ही था, वो बस में आई इसीलिए थी ताकि वो सारा एक्सपीरियंस ले सके, सब चीज़ों को अच्छे से देख पाए. so she has to look outside. so she also figure out one more time the a new way. और वो क्या था नया तरीका? she stood up on the seat. जब उसको लगा कि मुझे बैठे बैठे बाहर का व्यू नहीं दिख रहा है, then she decided to stand up on the seat and then she was able to look outside. Okay, so when she was standing on the seat then she started to peer over the blind. What is peer? Peer means to look with difficulty. Okay, so सीट पे खड़ी हो जाती है and then she was able to look outside. Okay,
द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल। सो बाहर उसे क्या व्यू दिखाई देता है, उसे दिखाई देता है कि जो बस थी नाउ इट वॉज गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल क्या होती है, हम सबने देखा है इस तरह का जो वाटर बॉडी होती है जिसे हम नहर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैनाल। सो वहाँ पे विलेज के पास में कैनाल थी। सो नाउ द बस वॉज मूविंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कैनाल। ओके, द रोड वॉज वेरी नैरो, और इस कैनाल के पास की जो रोड थी इट वॉज वेरी नैरो। ओके, on one side there was the canal and beyond it palm trees. okay, so one side तो क्या था, रोड के कैनाल थी, and beyond the canal there were palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. okay, so what was the scene? one side जो नैरो स्ट्रीट थी उसके one side कैनाल था, और कैनाल के बियॉन्ड palm trees थे लाइन से, एक बहुत वास्ट ग्रासलैंड था, ग्रासलैंड के बाद में डिस्टेंट माउंटेन्स थे, एंड ओवर द माउंटेन्स there were blue sky. okay, so this was the scene outside. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. okay, so one side there was canal and on the other side there was a deep ditch. what is ditch? Ditch is a narrow channel to hold away waters. okay, so here in the picture we can see this is called a ditch. okay, so one side there was canal and grassland, palm trees, mountains and blue sky. okay, and on the other side there was a deep ditch. okay, and then acres and acres of green fields. okay, and beyond the ditch there were acres and acres of green fields and they were so green that it was looking like green as far as the eye could see. okay, so जहाँ तक हम देख सकते थे, जहाँ तक Valli was able to see, she was able to see only green color there. okay, such a greenery was there. ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. सो वो सारा सीन देख के, वो नेचुरल ब्यूटी देख के फर्स्ट थॉट वली के माइंड में क्या आया, उसने सोचा ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. ओके, suddenly she was startled by a voice. Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. okay, so Valli is standing on a seat and she was looking outside the bus. Then suddenly she was startled. Startled means sudden shock. okay, so she was suddenly shocked. Why? Because she listened a voice was there, और उस voice ने क्या कहा, listen child, you shouldn't stand like that, sit down. okay, so Valli जो कि अपनी सीट पे खड़ी हुई थी, so किसी ने देखा कि वली एक छोटी बच्ची है, 8 ईयर बच्ची है और वो सीट पे खड़ी हुई है. सो उसको देख के बिकॉज ऑफ द कंसर्न किसी ने कहा कि डैट लिसन चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. तो ये सुनते ही जो वली थी वो सडनली थोड़ा सा शॉक हो जाती है. Sitting down, she looked to see who had spoken. So finally वो बैठ जाती है and after sitting down, she looked to see कि उसको ये बात किसने बोली थी, ये बात किसने कही, ये वो देखती है. okay, it was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. okay, so ये बात किसने कही थी, there was an elderly man in the bus, और वो थोड़े से concerned थे. concerned means worried, उनको सच में लग रहा था कि वली कहीं गिर ना जाए बस में से जो सीट पे खड़ी है. तो इसलिए वो थोड़े से वरिड थे, इसीलिए उन्होंने वली को बैठने के लिए कहा. बट वली वॉज अनॉयड, बड़ी बात वली को अच्छी नहीं लग रही थी. शी वॉज वेरी अनॉयड, शी वॉज वेरी एंग्री बाय हिज अटेंशन. अटेंशन मीन्स टू नोटिस समथिंग. ओके, सो वो जो एल्डरली मैन थे, ही वॉज वेरी कंसर्न, ही वॉज वेरी वरिड फॉर वली. दैट्स वाई ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन, बट वली वॉज नॉट लाइकिंग दिस. शी वॉज वेरी अनॉयड, शी वॉज वेरी एंग्री बिकॉज शी वॉज नॉट liking his attention, that he is noticing her that she is standing on her seat. okay, there is nobody here who is a child, she said haughtily. okay, so Valli जो है she is so annoyed, she is so upset कि वो बैठने के बाद क्या कहती है और कैसे. haughtily means proudly, she spoke proudly that there is nobody here who is a child. वो कहती है कि आप किसको कह रहे हैं sit down child, यहाँ पे child कोई नहीं है. I am not a child, I am a big girl. okay, I have paid my 30 पैसे like everyone else. आगे वो अपनी बात कंटिन्यू करती है and she said that I have paid my 30 पैसे like everyone else. जैसे आप सब ने अपना बस फेयर दिया है, मैंने भी अपना बस फेयर दिया है. It means I am not a child now, I am not a kid anymore, I am a grown up girl. okay, the conductor chimed in. okay, so जो कंडक्टर है, we have read earlier that he is very fond of talking, he is a very fun loving person. so जब उसने सारी बातें सुनी, okay, so उसे लगता है कि मुझे
भी अब कुछ बोलना चाहिए, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो द कंडक्टर चाइम्ड इन. व्हाट इज चाइम्ड इन? चाइम्ड इन मीन्स टू इंटरप्ट. ओके, सो वो भी बीच में इंटरप्ट करता है और क्या कहता है, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. वो कहता है यस सर, शी इज नॉट अ किड, शी इज नॉट अ चाइल्ड एनीमोर, शी इज अ ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? आगे वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि अगर ये एक चाइल्ड होती, अगर एक स्मॉल किड होती तो क्या ये इतनी एबल होती कि ये अपना फेयर भी देती और इस तरह से अकेले वो टाउन तक ट्रैवल भी कर पाती? ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन इसने अपना फेयर भी दिया है. शी इज़ ट्रैवलिंग ऑल अलोन. इट मीन्स दैट शी इज़ नॉट अ चाइल्ड एनीमोर, शी इज़ अ ग्रोन अप मैडम. ओके. Wali shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. अब वली ने बातें सुन ली थी तो कंडक्टर की बात सुनने के बाद वो कंडक्टर को देखती है कैसे, बहुत ही एंग्रीली देखती है, एक एंग्री ग्लांस वो कंडक्टर पे डालती है और फिर वो कहती है आई एम नॉट अ मैडम. वो फिर से थोड़े से अनॉयड वे में, थोड़े से एंग्री मोड में वो कहती है आई एम नॉट अ मैडम. नेक्स्ट शी कंटिन्यू टू से दैट प्लीज रिमेंबर दैट एंड you have not yet given me my ticket. After that she said that I have paid you my fare but still you didn't give me my ticket. Okay, so वली जो है वो वैसे 8-year-old girl है but she is all ready, she is all set and all prepared for her journey. उसे ये बात पता है कि अगर उसने फेयर दिया है तो उसे टिकट भी लेना है. ओके. I will remember, the conductor said, mimicking her tone. So कंडक्टर कहता है कि okay, I will remember that you are not a madam. और वो ये बात कैसे करता है? Mimicking her tone. What is mimicking? Mimicking means to copy something. Okay, so जिस टोन में वल्ली ने ये बात बोली थी that remember I am not a madam. So कंडक्टर उसी टोन को कॉपी करता है और सेम टोन में वो कहता है okay, I will remember that. Everyone laughed. और कंडक्टर ने जिस टोन में ये बात बोली थी, after listening that everyone in the bus, everyone sitting in the bus, they all started laughing and gradually Valli too joined in the laughter. So when everyone was laughing in the bus, the conductor was laughing, all the other passengers were laughing. So gradually Valli too started laughing and she also joined all other passengers in their laugh. Okay, so this was the first time, her first experience in the bus journey. वो बाहर का व्यू देख के, बाहर का सीन देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा है. शी इज enjoying a lot. Okay, so उसकी बस जर्नी आगे किस तरह से रहती है, उसको क्या क्या और एक्सपीरियंस मिलते हैं, we will come to know when we will continue the chapter. So see you in the next video. Thank you.